the town, the JRship, the 20 JRship of VMC. People were asking, sir, how to prepare, how to like manage the things. What is this JRship? What is this eligibility? How to fill the form? Everything, and what courses we need to fill, and what courses we need to study, and how to. So we are here to bring everything at one place, at one room. So we have brought two are very exclusive and very smart, academically so strong that they have cracked that exam last year with, and not only cracked, they have nailed it like top rankers, rank one and rank two, Dr. Muskan and Dr. Shweta. We thought like these are the best people to guide you because they were in the same situation where you are right in. Like what you do, you are already like blank, everything is blank, like because the exam is very near. So these two people will be the best people to guide you because they were in the same situation last year. So now I'm just giving this mic to Dr. Muskan, the rank one, and Dr. Shweta, the rank two, to give a little bit of introduction about themselves, and so that we can click on this webinar. Dr. Muskan, just your introduction. Good evening, everyone. I'm Dr. Muskan Dhanuka. Last year in VMMC JRship, I have secured the first position, and after working for the 8 months, I got my PG seat in RDC Guwahati. So I think I can guide you regarding the JRship very nicely. Thank you. So, see, guys, this is the best example that after JRship also, your journey doesn't stop. You have to like go academically so strong to crack the PG as well. Now, our next guest is Dr. Shweta. Please, Dr. Shweta, just introduce yourself so that the guys who are came here to listen understand that who we have introduced. Good evening, everyone. Myself, Dr. Shweta Kumari, and last year I have cleared the exam of JRship of BMMC, and I secured the rank 2, and I think I can guide you all regarding this. Thank you. Okay. Thank you so much, doctors, for your introduction. And our host, Dr. Nityam, is also there, and Dr. Ankit, the pillar of dental experts, and both are there. Welcome both. And can we have the section started now? Now, Dr. Muskan, I have got few questions with you. Can the JRC program that it runs every year, like it runs from January to December every year. This happens like according to you, like what you gave at that time. Yes, sir. It is the 1-year program from 1st of January to 31st of December. And one more thing, like this JRship is in Delhi, so there is a hush and bush between people that whether they need that dental that DMC registration or not, and if they need like during the JRship they need, or if they need it, then they have to transfer it. So what is this thing? Can you just enlighten something about them? Like, आप कुछ इस पे कुछ बता सकते हैं क्या, Dr. Muskan? सर स्टेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली डेंटल काउंसिल का ही रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, और यही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको ट्रांसफर भी नहीं करवानी है रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम. तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कॉलेज का, हॉस्पिटल का. Okay. And Dr. Shweta, I have got few questions with you also. Can we have a discussion? See, I just wanted to ask, like, what is the duration of this course? Like, is this JRship extendable? Like, after 1 year also we can extend it? सर इसका ड्यूरेशन अराउंड 1 ईयर रहता है, लाइक 1st of January to 31st December, और इसका एज सच अभी तक तो कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हुआ है अभी तक. अच्छा, मैं ये जस्ट पूछना चाहूंगा कि जो इसमें सैलरी मिलती है उसमें क्या लाइक कट करके मिलता है, क्योंकि देखिए लोग इसके लिए पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें हैंडसम सैलरी मिलती है। और एक और चीज जानना चाहूंगा कि बच्चों के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइडेड है क्या कैंपस में, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन दे विल बी रिक्वायरिंग द रेसिडेंशियल, बिकॉज लाइक अगर वो किसी मेडिकल कॉलेज या फिर डेंटल कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं फॉर पीजी, तो दे गेट द हॉस्टल्स। तो फॉर जीआरसी आल्सो द हॉस्टल्स आर देयर और व्हाट, और जो सैलरी है वो क्या है, थोड़ा सा आप इसे ब्रेक डाउन करके बताएंगे। Recording in progress. सर सैलरी का तो एज सच मतलब बेसिक मिला करके और हॉस्टल अलाउंस मिला करके ही देते हैं ये लोग, 1 लाख अराउंड रहेगा अप्रोक्स। और फिर हॉस्टल का तो कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं है, मतलब बाहर ही लेना पड़ेगा, बट हॉस्टल अलाउंस रहता है तो फिर वो हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नाउ द आई थिंक डॉक्टर नित्यम, कैन यू टेक ओवर नाउ द सेक्शंस ऑफ द क्यू द क्वेश्चंस सो दैट यू कैन आस्क टू द होस्ट। आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग दिस माइक टू यू एंड डॉक्टर नित्यम, एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम। ठीक है डॉक्टर मुस्कान, अब मैं आपसे कुछ डेंटल पार्ट पे जाऊंगा पूछना। ये इसमें फॉर्म में एक मेंशन्ड है कि 2 सब्जेक्ट्स प्रोग्राम है ये, तो इस 2 सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, आप मुझे ये समझाइए। सर 2 सब्जेक्ट्स मतलब इसमें क्या है कि 1 साल का टेन्योर है, तो 6 मंथ्स पीरियड में डिवाइडेड है। 6 मंथ्स डेंटल एंड 6 मंथ्स इज ट्रॉमा, मतलब बर्न्स एंड मैक्सिलोफेशियल में आपको काम करने को मिलता है, तो वो उसका मतलब है 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। अच्छा, तो ये कैसे अलॉट होता है कि किसको पहले एक मेडिकल मिलेगा या डेंटल मिलेगा, किस तरीके से अलॉटमेंट होता है? सर जब इनकी काउंसलिंग होती है तो ये जो प्रेफरेंस कर देते हैं कि जो फर्स्ट 10 रैंक है उनको प्रेफरेंस देंगे
कि वो चूज कर सकते हैं कि आइदर उनको डेंटल चाहिए या फिर मेडिकल चाहिए पहले, तो उस अकॉर्डिंग ये वो होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो डेंटल पार्ट में आप क्या क्या चीज़ वहाँ पर सीखते हो, क्या करते हो वहाँ पर, रूटीन प्रोसीजर्स कौन से आपको करवाए जाते हैं, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रा बताइए। सर डेंटल पार्ट में आप एक्सट्रैक्शन, प्रोस्थेटिक वर्क, सीडी, आरपीडी, एफपीडी, आरसीटी, ये रेस्टोरेशन, बहुत अच्छा एक्सपोजर है ये सारी चीज़ों का। ओके ओके ओके। तो इम्प्लांट्स भी उसमें हैं क्या, इम्प्लांट्स आपके करिकुलम में या फिर डाले जाते हैं वीएमएमसी में? सर नहीं, इम्प्लांट्स तो एसआर करते हैं वहाँ पे, जेआर का इम्प्लांट का तो नहीं है। अच्छा, जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या बड़े डॉक्टर साहब रहते हैं वहाँ पर केसेस को संभालने के लिए या फिर कुछ हेल्प करने के लिए, या फिर आप लोग खुद ही करते हो अपना? नहीं सर, वहाँ पे सब अवेलेबल है, मतलब एसआर्स रहते हैं वहाँ पे, आपके साथ ही रहेंगे, और फिर जो फैकल्टी है वो भी रहेंगे अगर उनसे भी नहीं हैंडल हो पाए, तो ऐसे ओके सब है भाई। ओके। और आपके ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं डेंटल और मेडिकल में, अलग अलग मुझे बताइए कि कितना टाइमिंग आप वहाँ पर देते हो डेली बेसिस पर? सर डेंटल की तो फिक्स ड्यूटी आवर्स है 9 to 4, एंड मेडिकल की फिक्स ड्यूटी आवर्स वैसे नहीं है क्योंकि उसमें कैजुअलिटीज़ वगैरह रहती है, नाइट ड्यूटीज़ रहता है, तो इट वेरीज मेडिकल में। बाकी डेंटल में फिक्स ड्यूटी आवर्स है 9 to 4। ओके ओके ओके। तो जैसे कि मेरे से काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हमारा जेआरशिप के बीच में एमडी नीट एमडीएस में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या मैं इसको बीच में छोड़ सकता हूँ, इसको स्किप कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। रेजिग्नेशन दे सकते हैं हम, इंस्टेंट रेजिग्नेशन आती है या 1 मंथ प्रायर इन्फॉर्मेशन रेजिग्नेशन आता है, तो ये दोनों चीज़ हो सकता है आसानी से, मतलब आप ले सकते हो रेजिग्नेशन, कोई तो इशू तो कोई ऐसे जुर्माना नहीं या है। कोई फीस लगती है क्या, कि हम इसको अगर छोड़ना चाहें इंस्टेंटली, तो ऐसा कुछ है क्या? कोई फाइन सर हो? लाइक स्टार्टिंग में सर काउंसलिंग के टाइम पे 25,000 ये डिपॉजिट लेता है। ओके अगर हम 1 मंथ के पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दें, तब 25,000 आपको वापस मिल जाएँगे, लेकिन आपको अगर इंस्टेंट रेजिग्नेशन चाहिए, तब वो 25,000 नहीं मिलेंगे, बस इतना ही है और कुछ नहीं। ओके ओके। अब मुझे आप ये बताइए कि एक रूटीन आपकी इंटर्नशिप थी आपके कॉलेज में, और आपने ये पूरी जेआरशिप की 1 ईयर, तो क्या डिफरेंस आपको लगा, क्या यूनिक एनवायरनमेंट आपको वीएमसी में सीखने को मिला, एक यूनिक चीज़ बताइए और क्या डिफरेंस बताइए, क्या रहा? मैं तो जैसे प्राइवेट कॉलेज से थी, हुँ, लेकिन ये दोनों चीज़ के लिए ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए, हुँ, कि हाँ, जो जेआरशिप है, वो थोड़ी डिफरेंट इसलिए हो जाती है वहाँ वीएमएमसी की, स्पेशली क्योंकि वहाँ एक्सपोज़र ही बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, एंड वर्क है, फ्री हैंड भी वर्क है वहाँ। ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड वर्क नहीं है, तो अच्छे खासा एक्सपोज़र है वहाँ पे। ये डिफरेंट पड़ ही जाता है इंटर्नशिप से। वहाँ एफपीडीज़ वगैरह नहीं होंगे, तो यहाँ अगर आप एफपीडीज़ का अगर आप ट्राई करना चाहो, मतलब अप्रोच करो कि हम ये भी करना चाहते हैं, तो वो मना नहीं करते। ये ओके, है, ओके, बहुत बड़ी चीज़ है जो आप सीख सकते हो। नाइस। और मेडिकल पोस्टिंग से के रिगार्डिंग कुछ बताइए? सर मेडिकल पोस्टिंग में तो बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मेडिकल पोस्टिंग यहाँ की। ट्रॉमा में आपको काम करने को मिल रहा है, फिर एमसीएच वगैरह के भी लोग रहते हैं साथ में जो सीनियर्स होते हैं, तो ये यूनिट है, मतलब वहाँ यूनिट के हिसाब से काम होती है। चलिए ठीक है, अब हम डॉक्टर अंकित सर बहुत से अच्छा है, एक्सपोज़र इज़ वेरी गुड। राइट, राइट। तो और अब मैं चाहूँगा मेरे डॉक्टर ख्याल से अंकित बर्न सर। पोस्टिंग बहुत हेक्टिक होती है वहां पर शायद, बर्न्स डिपार्टमेंट में। डॉक्टर हाँ श्वेता सर, बिलान थोड़ी सर। हेक्टिक होती। डॉक्टर श्वेता, मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों को आइडिया होगा ऑन एन एवरेज कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? सर लास्ट ईयर तो अराउंड 800 दिए थे, उसी के अप्रॉक्स रहता है, 1000 के अंदर रहते हैं। ओके। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए अभी जैसे 25 दिन बचे, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम यू आर इन अवर बैच ओनली, तो 25 ही दिन बचे थे उस टाइम पर भी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 25 दिन में हमारे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मान लीजिए 25 दिन में पूरा डेंटल पूरा मेडिकल तो हम पढ़ नहीं सकते, तो व्हाट यू फील कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें टारगेट करने चाहिए फॉर द मैक्सिमम आउटपुट? सर बेसिकली ऐसा रहता है कि क्लिनिकल और बेसिक्स है, मतलब हमारे डेंटल में तो बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाते ये लोग, क्लिनिकल पार्ट ही ज़्यादा पिक करते हैं। और जैसे फाइनल ईयर का सब्जेक्ट्स मेनली उस पे फोकस करना चाहिए, और जैसे प्रोस्तो हो गया और एंडो हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स ठीक है। और बेसिक्स में ज़्यादा नहीं टच करते हैं, जैसे मेडिसिन जनरल सर्जरी इतना नहीं पूछेंगे, एक आधी बायोकेम का क्वेश्चन उठा लिया तो उठा लिया, मतलब ऐसा है। क्लिनिकल स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि मुस्कान उसी जी। पे पेशेंट करने का है, इसलिए। ओके, मुस्कान जी आप क्या कहेंगी, कैसे करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल सही बात है। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ही जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं मेन वो, और साथ में अपनी ओपी हो गई, ओएमआर, ये सब मतलब ज़्यादा बेसिक है कि यही आना ही आना चाहिए, और डेंटल मटेरियल्स, ये सब ओके, चीज़। डेंटल मटेरियल से मतलब क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, आपका कहना है? यस सर, डेंटल मटेरियल से भी आते हैं। अगर हम डिवाइड करें, एक मेडिकल हो गया, एक हमारा डेंटल पार्ट हो गया, तो व्हाट यू फील 60 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट कितने परसेंट हमारा डेंटल पार्ट से आता है और कितने परसेंट मेडिकल पार्ट से आता है?
सर एटलीस्ट 75% डेंटल से आता है, 25% इज मेडिकल, मेडिकल से कम आता है जेआरशिप में। और एक और चीज ये कह रहा था मैं, जैसे 60 क्वेश्चंस हैं तो 800 बच्चे हैं, 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे तो कंपटीशन इज वेरी हाई। तो व्हाट इज सेफ स्कोर, आप लोग का क्या सेफ स्कोर रहा? मुस्कान जी आप बताइए। सर एटलीस्ट मोर देन 75% आपके करेक्ट होने चाहिए नेगेटिव के बाद। ये एक सेफेस्ट श्वेता जी, स्कोर है कोई भी जेआरशिप एग्जाम के लिए। कोई भी जेआरशिप, यू मीन टू से मतलब कहीं पे भी हम क्रैक कर सकते हैं, इतना अच्छा स्कोर है? हाँ सर, 75% से अबव एग्जाम में आना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलूं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या 50 प्लस ही अटेम्प्ट करने चाहिए? यस सर, 50 प्लस, मोर देन 55 प्लस अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, श्वेता जी आपका क्या कहना रहेगा इस पे? सर सही, मतलब 55 अबव तो कम से कम टच करना ही चाहिए क्वेश्चन को, और 50 अबव करेक्ट होना चाहिए नेगेटिव मिला करके। तो दैट मीन्स पेपर, आप लोगों का कहना है कि 55 प्लस के आसपास जाना है 60 में से, दैट मीन्स पेपर 90% प्लस अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब पेपर का क्वालिटी इजी रहता है कि हार्ड लेवल रहता है? क्योंकि सर अभी हम पढ़े तो किस। जी मॉडरेटली कहिए। रहता है, एकदम टफ भी नहीं रहेगा और बहुत इजी भी नहीं रहेगा, मॉडरेट लेवल पे रहेगा। तो एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि क्वेश्चन कम है, तो एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। तो आप 55 अबव टच करेंगे तो ही आपका 50 अबव करेक्ट हो पाएगा। राइट। तो दैट मीन्स हमें हमारे मतलब प्रैक्टिस भी करते रहना है क्योंकि सिली मिस्टेक का कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बहुत मेजर पार्ट आपके मार्क्स को इफेक्ट करेगा, इसलिए क्वेश्चन तो लगाते रहना चाहिए। सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आप टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगाइए, कोई भी क्वेश्चन पेपर कोई सेट लेके बैठ जाइए, तो उससे आपको रिकॉल अपना पता चलेगा कितना रिकॉल हो पा रहा है। और एक मेरे दिमाग में बहुत बड़ा डाउट है कि इज दिस जेन्युइन एग्जाम और इज देयर एनी लाइक कुछ डिस्क्रिपेंसी करते हैं ऐसा कुछ? जो जुगाड़ जो नहीं होते हैं सर, उसमें। बहुत फेयर है जुगाड़ ये। है? जी। बहुत फेयर है, कोई जुगाड़ का सिस्टम नहीं है, फेयर है, फेयर लेते हैं स्टूडेंट्स को ये। ओके। ओके ओके ओके। अच्छा, इसमें इंटरव्यू अच्छा, एक होता है मेरा क्या सेकंड पर्सनल स्टेज क्वेश्चन पे? है, क्या ये दिल्ली के ही लोगों को ज्यादा सिलेक्ट करते हैं क्या? क्योंकि बच्चे नहीं बहुत सर, ज्यादा पूछते हैं कि सर मैं दिल्ली से नहीं हूँ, क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं? लाइक सी, दिस इज द मोस्ट नाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम द साउथ पीपल एंड द साउथ एंड द नॉर्थ पीपल, बिकॉज सी आर देयर इज अ फेवरेटिज्म फॉर द नॉर्थ और फॉर द दिल्ली गाइज और द दिल्लाइट्स, बिकॉज दे थिंक लाइक कि वो हर वक्त अवेलेबल रह सकते हैं, तो रिटर्न सब। लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है कि नहीं, काइंड ऑफ अ लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है कि नहीं? लाइक जो साउथ साइड के बच्चे हैं वो हिंदी में इतने फ्लुएंट नहीं है, इंग्लिश इज अ मतलब कॉमन के वहां पर भी हिंदी बहुत ज्यादा वो रहता है, ये एक बस क्वेश्चन जैसा। सर ये प्योर एग्जाम बेसिस है, इस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद असम से हूँ और श्वेता भी बाहर से ही है, दिल्ली से नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कुछ ऐसा करते हैं। So everybody, this is a bright example of rank 1 and rank 2. They are saying the state doesn't matter. It's the thing that you does in that 1 hour there. राइट राइट। Okay, Dr. Nitam, please continue. Sorry to disturb. Was श्वेता very जी मैं important. एक चीज पूछ रहा था, जैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अभी वी नो कि पल्स इज द एक हमारी तरह से बाइबल है एक तरह से। तो अगर हम पल्स पढ़ रहे हैं तो हम किस तरह से पढ़ें उसको? सिर्फ साइनॉप्सिस पढ़ें या क्वेश्चंस आल्सो वी शुड डू, या पल्स के साइनॉप्सिस पढ़ें और टेस्ट पेपर्स लगाएं? सर पहले तो सिनॉप्सिस कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और सिनॉप्सिस अगर कर लिया ओपी का मेजरली, तो वहां से मेजर चंक आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन रिसेंट पेपर लगा सकते हैं, पल्स में रिसेंट पेपर दिया रहता है नीट का, वो लगा सकते हैं लास्ट ईयर पेपर। और अगर टाइम मिला तो फिर टॉपिक वाइज, नहीं तो फिर रिसेंट पेपर और सिनॉप्सिस सफिशिएंट है। मुस्कान जी आपकी क्या अप्रोच रहेगी? सर सेम है, साइनॉप्सिस के बाद ही हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो मिसलेनियस दे रखा है उन्होंने पल्स में, वो थोड़ा जेआरशिप के लिए वो ज्यादा फोकस हो जाता है। वो तो है ही, मतलब मिसलेनियस तो करके ही जाना है पल्स का। तो मतलब एक क्रक्स ये है कि हमें पहले डेंटल पार्ट एकदम अच्छी तरह कर लेना है, उसके बाद अगर टाइम मिले तो मेडिकल। अब मेडिकल में आ रहे हैं तो मेडिकल में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पे मतलब फोकस थोड़ा सा रखना है, श्वेता सर जी? वैसे बायोकेमिस्ट्री आप देख सकते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन हमारे टाइम पे आया था, तो वो देख सकते हैं। जनरल सर्जरी का देख सकते हैं, क्योंकि सर्जिकल पार्ट का थोड़ा थोड़ा ये लोग मतलब काम भी आता है हमारे साथ, मतलब वर्क प्लेस पे, तो जनरल सर्जरी, ये दोनों देख सकते हैं आप। ओके ओके। डॉक्टर श्वेता, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या आपके एग्जाम में? तो एक क्वेश्चन का 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा अगर गलत करते हैं तो। अच्छा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, आप ये बताइए, इसका एग्जाम कहाँ होता है? दिल्ली में ही होता है क्या एग्जाम, क्या कहीं और भी होते हैं सेंटर्स इसके? नहीं, ये वीएमएमसी में ही कराएंगे, इनका ओपीडी ब्लॉक है, वहां पे कराएंगे। ओके ओके ओके। तो सेकंड स्टेज में कोई इंटरव्यू होता है क्या, केवल सोनली रिटन बेस्ड ही है इसके एग्जाम का सिलेक्शन?
रिटन बेस्ड है, कोई इंटरव्यू का ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू वगैरह लेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है। अच्छा, और कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है जो काउंसलिंग से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल नहीं, मतलब काउंसलिंग से पहले कितने बच्चों की लिस्ट आती है निकल कर? सर 3 टाइम्स बुलाते हैं। यानी कि 20 सीट्स हैं, तो मैं मतलब आई थिंक 60 कैंडिडेट्स का इनकी लोग लिस्ट निकालेंगे, फिर उसकी काउंसलिंग कराएंगे, राइट? हाँ। ओके 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 ओके। डॉक्टर अंकित सर, आप कुछ दिखा रहे हैं तो जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं पूछना भी चाहता हूँ मुस्कान जी से और श्वेता जी से कि आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं जो आपके पेपर में आए थे, एक काइंड ऑफ एन एग्जांपल कुछ। एम सर आई ऑडिबल? बैक्टीरियो, अब लाइक बैक्टीरियोसाइड शुगर पूछा गया था, फिजियोलॉजी से ईएमजी का क्वेश्चन आया था। ओके एक्चुअली हमारे पास पेपर है, तो जो बच्चे चाहते हैं उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। ब्लड स्पिल्स का एक क्वेश्चन था। सर जैसे मेरे को अभी थोड़ा बहुत जैसे ध्यान में आ रहा है, एक ऑर्थो का भी क्वेश्चन था कि लेवल वो का गेज कितना होता है वायर का, एग्जैक्टली ऐसा। एग्जैक्टली, लेवल बुक गेज। यस। और फिर जैसे एक परसों का मैंने बताया कि पॉन्टिक के बारे में आ जाता है जी कि कौन सा एस्थेटिक है, ऐसा। जी। हाँ, पॉइंटिंग्स के बारे में क्वेश्चंस थे, ठीक है। और और डोंट वरी डॉक्टर श्वेता, स्टूडेंट्स, हम लोग शेयर कर देंगे आप लोगों को साथ ये सारे क्वेश्चंस। उससे आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप टेंशन ना करें, ठीक है। जो भी है, जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप देख रहे हो, वो सारे हम अपलोड कर देंगे टेस्ट सीरीज में भी, आप उसकी चिंता मत करो। राइट राइट राइट। कुछ हाई एल्ड टॉपिक्स भी रहेंगे, वो भी हम लोग शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। तो उसकी भी आप टेंशन मत करिएगा। और हाई एल्ड एमसीक्यूज भी हम लोग शेयर कर देंगे। राइट राइट राइट। अच्छा, डॉक्टर श्वेता, जैसे कि हमारी जो लास्ट ईयर हमारी टेस्ट सीरीज रन की थी, उसमें ये अपने आप में एक कैंडिडेट थी लास्ट ईयर, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बैच से सेकंड रैंक आई थी। तो ऑल दो इसमें वो डॉक्टर, टेस्ट में भी नित्यम आपको याद होगा, शी वॉज अ टॉपर इन टेस्ट ऑल्सो। राइट राइट, ये कंसिस्टेंट रही है जी बिल्कुल। शी वाज अ कंसर्न गर्ल, और हमको ये पता था कि इनका सिलेक्शन होना ही होना है, और बिल्कुल भाई इसका रिजल्ट भी आया। तो बहुत खुशी के संग इसका सेकंड रैंक भी आई थी। तो मैं डॉक्टर श्वेता से जानना चाहूंगा कि आपको हमारे कंटेंट, हमारा जो टेस्ट सीरीज की आपके एग्जाम में, ऑल्दो मैं जानता हूँ कि आपकी ही इसमें मेहनत होती है, बट एक रूटीन बांधना, डिसिप्लिन होना, और एक गाइड देना, लास्ट ईयर पेपर्स देना, गाइडेंस कराना, पूरा एलिजिबिलिटी करेक्शन कराना, वो सब हमारा पार्ट था। तो उसमें आपका क्या बोलना है? सर जैसे मैंने आपका टेस्ट सीरीज लिया था, तो उसमें जैसे आपने टाइम डिवाइड कर दिया था कि हाँ इस दिन हमारा ये पेपर है, तो फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब आपको एग्जाम वाला वो इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि हाँ मेरे पास लिमिटेड टाइम है, इस टाइम पे मेरे को इतना इतना क्वेश्चन लगाना है, इतना निगेटिव मार्किंग है कैसे लगा सकती हूँ, कितना टाइम मेरे को बाद में बचाना है कि मैं वापस से रिवाइज कर सकूँ। एक कंसाइज वे में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, टाइम सेम रहता है, तो आपको वो एग्जाम वाला इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो बहुत काफी हेल्पफुल होता है। एंड मोमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन को आपको आइडिया मिल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो राइट बाकियों के बीच में। राइट राइट। और आई थिंक सो, डॉक्टर मोहित सर, हमारी टेस्ट में कितने सिलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर आउट ऑफ? आई थिंक 20 सिलेक्शंस हुए थे डॉक्टर नित्यम हमारी टेस्ट सीरीज से। राइट राइट। एंड दिस वाज अ वेरी वेरी ब्राइट थिंग। आई थिंक हमने सारा लाइक मोस्ट ऑफ द 90% सीट्स स्वाइप कर लिया था। और ये चीजें हैं। और डॉक्टर अंकित अब आपको ऐप के अंदर बताएंगे कि हमारे ऐप में आपको क्या क्या दिखेगा। तो काइंडली जो बच्चे अभी अभी देख रहे हैं, वो आप ऐप के अंदर भी चेक कर सकते हैं। या एंड इट जो भी स्टूडेंट्स आर आस्किंग द डाउट्स इन द इनबॉक्स, आई नो, बट वेट करें, हम अंतिम में क्यूएनए सेक्शन खोलेंगे, इसमें आप हमारे सारे के सारे स्पीकर से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो राइट, डॉक्टर बहुत अंकित जल्दी प्लीज आप थोड़ा ऐप का ऐप बताएं। में मोस्टली मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, दे कैन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस नीट के और सारे डेंटल और मेडिकल के नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और नीट के पेपर्स भी रहेंगे और टेस्ट सीरीज तो रहेगी, प्लस हम रही। लोग वेबिनार जो है उसको भी अपलोड कर देंगे। तो आई थिंक ये सब बहुत इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। द मेन थिंग इज उनकी पढ़ाई। हमारा काम बस ये है कि हम उनको एक स्टिपुलेटेड टाइम दे देते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है उनकी, और वो डेडिकेटली 25 दिन इतना स्ट्राइव करके पढ़ाई करते हैं कि इस रेस में वो आगे हो जाते हैं। उन्हें टॉप और नहीं सर करना एक है, द ओनली थिंग इज कुछ कुछ लोगों को राइट, पीछे करना है। 800 में से 20 में आना है, दैट्स इट। आई ये वुड से कि कंपटीशन इज 250 या 300 बच्चों का ही मेजर कंपटीशन होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बस फॉर्म भरते हैं और चले आते हैं, और मैक्सिमम जो 300 से 400 बच्चे होते हैं उन्हीं में आपको फाइट करनी है। तो इट्स नॉट दैट फियर्स कंपटीशन। अगर आप 25 दिन बहुत डेडिकेटली पढ़ाई कर लेंगे अपना सब्जेक्ट्स को, स्पेशली जो श्वेता जी और मुस्कान जी ने बताया, दे आर द टॉपर्स, तो उन्होंने जो बताया उनसे अच्छा तो हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इस चीज डॉक्टर को। अंकित, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगा। आप थोड़ा सा पहले ऐप को दिखाइए कि हमारा कितना शानदार ऐप है। और आप देखिए, हमने क्रिस्पली हर चीज बांटा है। आप देखिए जीआरसी के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक एक चीज मैं बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि आप देखिए एक एक चीज हमने ऐप में दिखाई है। आप शुरू
बिल्कुल ब्लाइंड है। आप सोचिए कि आपके पास, आपने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, आप हमारे ऐप में देख सकते हैं कि जेआरशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप शुरू करेंगे, फिर जेआरशिप प्रैक्टिस पेपर्स करेंगे, फिर डेंटल सब्जेक्ट्स, कोई भी आपको डेंटल सब्जेक्ट प्रिसाइसली इतने कम टाइम में एकदम, आप थोड़ा सा डेंटल नोट्स दिखाइए डॉक्टर अंकित हमें, लाइक सो दैट स्टूडेंट्स कैन व्यू दैट व्हाट दे आर गोइंग टू गेट। मेरे ख्याल से नोट्स अभी हम लोग इसमें शो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशू, वो स्क्रीन अच्छा शेयर अच्छा, नहीं होती ठीक है है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। प्लीज गो टू द मेन मेन्यू सो दैट द पीपल कैन सी द कंटेंट सेक्शन once. Now see, there are the mocks, there are the practice papers we have uploaded, and you are not getting only the previous year's questions, you are also getting the questions that can be asked. So most of the questions you can get from our app only, and you can see like हमारा last year 20 selection हुआ था, so it's a very big thing. So you should understand this very important part. And Right. this is the topic also, you can understand high yield topics. We have selected few important topics, and you can read these also, the high yield topics and the notes, everything is there. So you can just continue. So sorry Dr. Ankit, I just interrupted in between so कोई that हम बता सके ऐप में हम क्या क्या दे रहे हैं। प्लीज नहीं, कंटिन्यू। हम अब Q&A की तरफ बढ़ना चाहिए जी जी क्योंकि जी अच्छा अच्छा, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। ठीक डॉक्टर मोहन ठीक प्लीज। ठीक है। और आई थिंक हमारा इनबॉक्स भी पूरे बच्चों से भर गया है एंड ऑल। एवरीबॉडी, आई थिंक वी आर ओपनिंग द Q&A सेक्शन। अब वन बाय वन बच्चे अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपनी चीजें पूछेंगे हमारे स्पीकर से, एंड ट्राई आस्किंग ऑल द डाउट्स इन वन गो। Please stick to the questions regarding the JRship exam so that you get the benefit from the speakers. आपके Please, कोई भी क्योंकि ये डाउट हो। speakers राइट राइट। हमेशा अवेलेबल नहीं रहते। जैसे मेरा एक डाउट है, मैं एक डाउट पूछना चाहता हूँ कि मेरे को 6 महीने बाद प्रिपेयर करना है नीट के लिए, है ना? मार्च में या फरवरी एंड में नीट का एग्जाम होता है। तो अभी मैं जेआरशिप ज्वाइन करता हूँ, 4 मंथ्स मेरे पास रहते हैं। तो मुझे मेडिकल पोस्टिंग को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए या डेंटल पोस्टिंग को प्रेफर करना चाहिए फॉर माई प्रिपरेशन? मुस्कान जी, श्वेता जी। सर, मैंने भी मतलब पीजी ज्वाइन कर ली थी, तो टाइम मिलता है, पर डेंटल पोस्टिंग्स में टाइम मिलेगी ज़्यादा मेडिकल से। ये होता है क्योंकि डेंटल में एक टाइम बाउंडेशन है 9 to 4। 9 to 4 के बाद आप फ्री हो, तो उसके बाद आप पीजी प्रिपरेशन कर सकते हो। और डेंटल में बीच बीच में आपको फ्री टाइम भी मिल जाता है कि आप है ना पढ़ाई कर सकते हो, अपने बुक्स लेके बैठ सकते हो। क्योंकि हाँ, ये Good evening, sir. Good evening, ma'am. हाँ Ma'am, I want to ask you that the timing of examination. नाइस क्वेश्चन। डॉक्टर मुस्कान प्लीज आंसर। सर, इनका टाइमिंग ऐसे फिक्स नहीं है, लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर तो इनका कुछ 10 से 11 बजे हुआ था, और लास्ट टाइम आफ्टरनून में हुई थी एग्जाम 2 to 3। मेडिकल ये वालों का मॉर्निंग सेशन में हो जाता है, डेंटल वालों का आफ्टरनून में हो जाता है, इस तरह कभी कभार रोटेट कर देते हैं वो लोग। तो हमें वहाँ पे किस टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, मतलब एक डोंट वरी, approx- आपको एडमिट कार्ड में प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी। हाँ इसलिए बिल्कुल मतलब बेफिक्र रहिए। इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो हो सकता है आपको एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन दे प्रोवाइड। हाँ, कितने मुझे टाइम भी पहले लगा। ये एडमिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे हमें? मे बी 1 हफ्ते पहले। और अभी एक एलिजिबिलिटी लिस्ट भी आएगी, उसमें भी लिखा रहेगा टाइमिंग्स और वो। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। My question is, how does this counseling happen? Like for 60 students? डॉक्टर श्वेता आप। बेसिकली जैसे रैंक वाइज वो लोग बुलाते हैं, ठीक है, और फिर रैंक वाइज में आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा पोस्टिंग पहले चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वही करते बेसिकली। और फिर आपको उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगा जिसको वो लोग लिए हुए होंगे, ऐसा है। ओके, मान लो कोई नहीं पहुंच पाता है तो उसको चांस वेटिंग लिस्ट का कोई है क्या इसमें ऑप्शन? वेटिंग लिस्ट का तो नहीं है, मतलब उसी के उसी वक्त ले लेते हैं। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, देखेंगे, पूछेंगे आपको क्या कौन सा पहले लेना है पोस्टिंग, फिर फाइनल लिस्ट निकाल देते हैं ये लोग। ज्वाइनिंग सबसे 1 जनवरी से स्ट्रिक्टली ये लोग ज्वाइनिंग करवा लेते हैं? हाँ, 1 जनवरी से स्ट्रिक्टली आपको ज्वाइन करना ही है। अच्छा, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। They call 60 students for the counseling? हाँ, अप्रोक्स उतना ही रहेगा। Okay, thank you, ma'am. मैम लाइक हमें जैसे साइनॉप्सिस पढ़ने को कहा है, तो हमें सारे सब्जेक्ट्स के साइनॉप्सिस पढ़ने चाहिए या सिर्फ डेंटल के ही साइनॉप्सिस पढ़ने चाहिए? Those who are not muting themselves, please remove from the webinar. That please exclusive it. मुस्कान जी, आप बोल सकते हैं। पढ़ने को लाइक मेन फोकस है डेंटल, बाकी आप एज अ रिव्यू देख के जा सकते हो मेडिकल, बट बाकी सबसे ज़्यादा मेन फोकस फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स ही रहेगा। तब आपको क्या पूरी पल्स ऑन टिप्स याद थी उस टाइम पे जब तक आपका एग्जाम हुआ था? श्वेता जी, मुस्कान जी, कोई बताइए। मेरे ख्याल से टिप पे याद अभी भी नहीं होगी। दो दे हैव क्वालिफाइड फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस आल्सो, नीट में टॉप रैंकर्स भी हैं, तो पल्स टिप पे याद की बात नहीं है। एक कंसेप्चुअल थोड़ा क्लियरिटी होती है, और बाकी टॉपर्स बताएंगे आपको। अरे मुझे लगता है डॉक्टर अंकित आप टॉपर्स को बताने दीजिए, ये उनके हाँ, मुंह वही से बोल ज्यादा रहा अच्छा हूँ, लगेगा। टॉपर्स डॉक्टर बताएंगे। मुस्कान आप बताइए, उसके बाद फिर डॉक्टर श्वेता जी बताएंगे कि क्या आपको एकदम पल्स। सही बात है।
बताइए। सर सही बात है, टिप्स पे तो ऐसे याद नहीं है, बट जब आप करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आप क्वेश्चन देखोगे पल्स के, आप साइनॉप्सिस पढ़ोगे, तो उससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती जाती है हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ये है। राइट। डॉक्टर श्वेता, आपका क्या इस पे कहना है? सेम वही है कि टिप पे तो नहीं रहेगा, हर चीज रटा हुआ नहीं रहता। क्वेश्चन लगाते हैं तो जहाँ मिस्टेक है वहां ध्यान जाता है, फिर वो चीज याद अच्छे से रहता है। तो इसीलिए क्वेश्चन लगाने से पता चलता है कि कितना याद है कितना नहीं याद है। ओके। मैम हमें INI के पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, INI CT के लास्ट 5 years। INI का उतना मेजर नहीं पूछते हैं, नीट का ही बेसिकली रहता है, तो नीट मोर देन एनफ है। अगर टाइम मिले तो INI देख लेना। मैम कट ऑफ का थैंक यू आइडिया है मैम। आउट ऑफ 60 कितना? 50 अबव मतलब टारगेट रखना कि 50 अबव करेक्ट हो सके। कट ऑफ तो ये लोग बताते नहीं है, लेकिन हमारे साथ जितने भी सिलेक्टेड थे सबका वही था कि हमने 55 अबव मतलब करा था, और हमारा पता चल जाता है कि कितना करेक्ट हुआ होगा अप्रोक्स। तो सबका यही था कि 50 अबव हमारा अप्रोक्स करेक्ट होगा ही होगा ऐसा। अच्छा, मार्क्स शो नहीं करते हैं एग्जाम के बाद, नहीं, मार्क्स नहीं, सिर्फ नेम्स आएगा। केवल नेम्स आते हैं? एक और क्वेश्चन बच्चे का है रैंक कि ऑर्डर। ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ दिल्ली इज रिक्वायर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा? हाँ, नाइस इफ क्वेश्चन। यू ऑल नो कैटेगरी दिस। सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही चाहिए होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट का नहीं चलेगा, आपको सेंट्रल लेवल का ही चाहिए होगा। उसमें एक परफॉर्मा दिया होगा, वही परफॉर्मा पे करा के देना रहता है। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे ये पूछना था कि एप्लीकेशन जनरेट हो गया है, मतलब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, ये पता कैसे चलेगा? देखिए डॉक्टर्स, अभी सभी के एप्लीकेशन सबमिट ओके, किए जा रहे हैं, थैंक यू। ठीक है। फिर आई थिंक 5th ऑफ दिसंबर के अराउंड आपकी एक एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी, उसमें आपके नेम्स, आपके रोल नंबर्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एप्लीकेशन का स्टेटस सब कुछ शो होगा, ठीक है। आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं, और आप एलिजिबल नहीं भी हैं तो भी आपको करेक्शन के लिए शायद एक विंडो मिलती है। डॉक्टर श्वेता, अगर मान लो किसी के कुछ करेक्शंस हैं तो क्या वो उसको अलाउ करते हैं? पहले तो एक एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगा, उसमें बता देते कौन कौन किसका किसका नेम्स है, और अगर नहीं रहता है तो शायद ओपन करेंगे। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं अच्छे से, पर शायद ओपन करते हैं ये लोग। एग्जाम के कितने दिन बाद लाइक फाइनल मेरिट लिस्ट तो नहीं आती होगी, एक टेंटेटिव जिस पे आती है, वो कितने दिन बाद आती है और कहाँ पे आएगी? वो 1 वीक के अंदर आ जाता है, वो साइट पे ही आएगा। उसके बाद वो लिस्ट जो आएगा काउंसलिंग का आएगा। फिर काउंसलिंग में जब जाओगे तो वो काउंसलिंग करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं। वो 1-2 दिन में फाइनल आ जाता है, पर हाँ, एग्जाम के 1 सप्ताह बाद आएगा काउंसलिंग का लिस्ट। यही एक क्वेश्चन एक बच्चे का कि जब सीट 20 है, 3 टाइम्स बच्चों को क्यों बुला रहे हैं, और ये काउंसलिंग में क्या हो रहा है? जब इस काउंसलिंग के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तो व्हाई दे आर कॉलिंग 3 टाइम्स स्टूडेंट? सर क्योंकि ये ऑल इंडिया वाले सभी ने एग्जाम दिया होता है, तो काफी लोग आ नहीं पाते हैं। तो नहीं आ पाते तो फिर उनके जगह कोई और आएगा तो उनको सीट मिल जाएगी, इसीलिए ये 3 टाइम्स बच्चों को बुलाता है। और ओके। किसी किसी का जो वो डॉक्यूमेंट्स होता है वो मैच नहीं हो पाता या कुछ ऐसा जो उन्होंने सबमिट करी है, तो उस बेसिस पे वो रिजेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ थोड़ा ऐसा, इसीलिए वो 3 टाइम्स बच्चों को बुला रहे हैं। ओके। ओके। मैम अगर हम क्लिनिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो क्या हम 50 प्लस स्कोर करने के कैपेबल हैं? I think just before asking, this is the bright question. I think the people, the guys, the students are. I will ask the students to ask about the exam, not after the exam, because first you get selected, then these type of questions arises. So you should be, because see these speakers are very, इनके पास टाइम नहीं है, तो अभी हम इनको किसी तरह से विनती करके लाए हैं ताकि ये अपनी पोस्टिंग थोड़ा सा छोड़ के आए हैं। तो आप सभी इनसे इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि कैसे तैयारी करनी है, क्या है क्या नहीं है, आप वो टाइम यूटिलाइज करें। इसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम और डॉक्टर नितिन बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। बाकी हम फिर से एक और वेबिनार कर देंगे, तो बिल्कुल आप एकदम क्वेश्चन पूछिए कि एग्जाम में कैसे सिलेक्शन होगा। सॉरी टू डिस्टर्ब, हाँ प्लीज आस्क योर डाउट। हाँ जी मैम, मैं ये पूछ रहा था कि अगर सिर्फ हम क्लिनिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन बेसिक्स पे, और बेसिक्स से जस्ट एक सुपरफिशियल गो थ्रू करेंगे, तो क्या हम 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको क्लिनिकल ही मेन ध्यान देना है ना, वही आपका बेस स्ट्रांग बनाएगा और उससे हो जानी है सिलेक्शन। मैम एक बार आप एक बेसिक आइडिया मैम दे दीजिए एमएच कि बेस्ड क्वेश्चन रहता है। बेसिक से हमें कितना मतलब क्या क्या कवर करने की जरूरत है, मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें बेसिक से आना ही चाहिए। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, लाइक ओपी हो गया, ओएस हो गया, प्रोस्तो हो गई, डीएम हो जी गई, मैम। कॉन्सेंडो हो गई, ऑर्थो हो गई। ये सबसे तो आना ही आना चाहिए, इससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या इस टाइप के थैंक यू। क्वेश्चन आते हैं कि क्लिनिकल बेस्ड, लाइक कि एक पेशेंट आया और उसके साथ ये बीपी ये है, ये मॉनिटरिंग करके ये क्या डायग्नोसिस होगा, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मोस्टली वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं? वन लाइनर ही आते हैं सर, इतने क्लिनिकल नहीं आते। हाँ, राइट लाइक मैम राइट। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं? फिजियोलॉजी आप देख सकते हो एक बार, पिछले साल फिजियोलॉजी से आई थी क्वेश्चन ओके मेंस। थैंक
सर हमें पल्स को ही अपना मेन बुक मानना है अभी, मतलब फॉर द नेक्स्ट 20 days, और लाइक वी शुड रिलाई ऑन अदर सोर्सेज आल्सो। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप किसी और चीज पे फोकस करें, पल्स ही कर लो, वही है, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन वहीं से उठाएंगे, क्योंकि वही ऑथेंटिक बुक है। मतलब सर ने बोला ना, जैसे बाइबल है, उसको बाइबल ही मान के चलो और उसको ही करो, हो जाता है उससे। वैसे तो हो एक जानी और चाहिए। थैंक यू चीज मैम। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा श्वेता जी और मुस्कान जी। देखिए हम लोग पेपर सेट करेंगे, तो विल बी नीडिंग योर हेल्प एंड गाइडेंस, आपके बैचमेट्स प्लस आपके साथ, कि वो क्वेश्चंस मतलब उसी लेवल पे आ रहे हैं कि नहीं, और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, तो विल नीड योर हेल्प फॉर दैट, ताकि बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन रहे, इन लोगों का मतलब बेस्ट प्रैक्टिस हो। बेसिकली क्वेश्चन फ्रेमिंग में आप लोग थोड़ा सा अपनी अपनी इनपुट्स हमें चाहिए आपके। Sir, when will थैंक we यू। get the access to the app? टुमारो बाय द एंड ऑफ टुमारो आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा एप्लीकेशन का, और आपके टेस्ट का जो सारी शेड्यूल है चीजें वो भी हमने रेडी कर दिया है। हम्म। आपको अपने अपने एडमिन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने Excuse me, जिससे sir. एनरोल किया है डॉक्टर, आप लोगों को कल वो एडमिन आपको ऐड कर देंगे, तो प्लीज आप चिंता मत करिए। एडिंग ऐप एडिंग एंड एवरीथिंग विल बी डन बाय टुमारो, और डे आफ्टर जो भी है आपको कल तक ऐड कर दिया जाएगा। तो सॉरी फॉर इंटरप्ट। जनरल एनाटॉमी एंड इमरजेंसी क्वेश्चंस कितने आते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज? दे आर आस्किंग कि मेडिकल इमरजेंसी से क्वेश्चन आते हैं क्या बहुत? और जनरल एनाटॉमी से पूछ रहे हैं ये, आप बताइए। एनाटॉमी की सूची में नहीं पूछेंगे, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी को पूछते हैं। मेडिकल इमरजेंसी ओएस में आता है ना, ओरल सर्जरी में, तो उससे क्वेश्चन आएगा। ओके ओके। मैम फार्मा के कितने क्वेश्चंस आते होंगे? ये कोई पूछ रहा है फार्मा से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? डॉक्टर श्वेता प्लीज कंटिन्यू। फार्मा से नहीं पूछते हैं हमारे टाइम पे, तो नहीं, एक आधी पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, बट फार्मा नहीं, बेसिकली नहीं रहता है। ओएस कर लेना, ओएस के सिनॉप्सिस में ही दे रखा है मेडिकल इमरजेंसीज, पूरा चार्ट है वो, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। राइट। Ma'am, one more thing I want to ask is like the question is like fact based or like based on the clinical scenarios. Like they will ask the like to memorize वाली thing or like the basic. वैसे तो मिक्स रहता है दोनों का, बट मेजरली वन लाइनर ही रहेगा, ऐसे क्लिनिकल ज्यादा नहीं रहता है। मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मुस्कान जी और श्वेता जी, आप लोग मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी 25 दिन, मतलब मान लीजिए लास्ट ईयर ही चल रहा है, ठीक है, पिछले बार जैसे, तो आपने कुछ मिस्टेक्स की होंगी, कुछ अच्छी भी की है, तभी आप सिलेक्टेड हैं। इस बार अगर आपके पास 25 दिन बचे हैं, तो हाउ विल यू प्रिपेयर इन दीज 25 डेज? पहले मुस्कान जी आप बता दीजिए, फिर श्वेता जी बता दीजिए। सर तो यही स्ट्रेटेजी रहेगी, सबसे पहले पल्स करनी है। पल्स के पहले साइनॉप्सिस पढ़ने हैं, साइनॉप्सिस करके क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस लगा के साथ साथ में जो मॉक या फिर टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर रखी है, जैसे आपकी वाली जो टेस्ट सीरीज है, मैंने उसकी एक फ्री टेस्ट दी थी लास्ट ईयर, इट हेल्प मी, तो वो भी अच्छी थी। तो वो एक अच्छी है कि आपका प्रिपरेशन वहीं पे अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है कि आप कितने क्वेश्चन लगा रहे हो, टेस्ट कितने दे रहे हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती, इस पे ये है सिर्फ एमसीक्यू इज बेस्ड, इसीलिए। श्वेता जी आप? सेम वही है कि वहाँ एमसीक्यूज आएगा, वहाँ थ्योरी तो आ नहीं रहा है, तो एमसीक्यूज आएगा तो एमसीक्यूज लगाएंगे तो ही होगा। और आपका टेस्ट सीरीज में मतलब जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है, तो फिर वो लगाने से हेल्पफुल होता है मतलब। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं क्या? नहीं, इमेज बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था हमारे टाइम पे। मैम आपने एग्जाम के 2 दिन पहले क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी रखी थी? लास्ट के 2 डेज में आपने मतलब कैसे कवर किया था चीजों? डॉक्टर साहब अभी तो काफी दिन है, 2 डेज अभी तो आप इतने फिर भी आदमी नहीं डॉक्टर नित्य आप पूछ लेने सोचता है ना दीजिए, आदमी कि डॉक्टर नित्य पूछ लेने दीजिए, नहीं ये बिल्कुल सारे कोई सवाल सवाल नहीं। आप पूछ लेने बताइए दीजिए, डॉक्टर मुस्कान, पूछ लेने अगर दीजिए। आपके मैं पास चाहता हूँ कि लास्ट 5 डेज है, टॉपर्स इसका जवाब दे, लास्ट 5 टॉपर्स डेज इसका है, जवाब दे। लास्ट 5 डेज है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप हमें बताइए कि क्या क्या। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर 5 सब्जेक्ट्स देखा जाए तो ओएस है, ओपी एंड ओएमआर वो साथ में याद आता है, प्रोस्थो, पेरियो और साथ में ऑर्थो या डीएम, ये सभी है मतलब टोटल इंक्लूड करके कि ये तो करना ही करना है लास्ट के एंड 5 to 6 years में। I have a question. I mean, a lot of us are working, right, practicing in different clinics and all. So, how much time we should give to this? How much time we should prepare for? A very effective question and a very important question. Please answer. ये क्या फोटोग्राफर बना है? चलो तुम भी पढ़ो। प्लीज अनम्यूट डॉक्टर्स। क्वेश्चन ये है कि जो क्लिनिकल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं अपने अपने क्लिनिक्स में, उसके संग संग कितना टाइम वो मैनेज करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए? श्वेता जी आप बताइए इसमें कि एक एक करके आप दोनों लोग जवाब दीजिए मेरे को। सर मतलब अभी जैसे 20 डेज बचा है, तो आप मेजर क्लिनिक को थोड़ा कम प्रेफरेंस दे करके अपना इसमें दीजिए, क्योंकि कंपटीशन है, सिलेक्शन आपको चाहिए, तो मिनिमम 6 आवर्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितना स्पीडली कवर करते हैं, वही होता है। और क्लिनिक अभी कम ध्यान देने से ही हो पाएगा, क्योंकि कई लोग होंगे जो मतलब क्लिनिक नहीं कर रहे होंगे और वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो फिर क्लिनिक को थोड़ा साइड रख के 6 आवर्स मिनिमम। ओके ओके। Good evening, everyone. गुड इवनिंग।
Ma'am, I just have a question. Ma'am, dental pulse तो करना ही है. Like, can we just read the recent question papers or the entire pulse का करना है? इनका क्वेश्चन ये है कि जैसे हम डेंटल पल्स सॉल्व करते हैं तो उसमें सारे एमसीक्यू करें या सिर्फ रिसेंट और मिसलेनियस पोर्शन के करें? वैसे तो सारे करने हैं क्योंकि वो कुछ भी दे सकता है। बेसिक तो डेंटल पल्स में है ही कितना, ज़्यादा तो है नहीं। अगर आप रिसेंट के पेपर कर लोगे और साथ में जो जितने भी टॉपिक्स है, क्योंकि टॉपिक्स तो कवर आपको करके ही जाने हैं सारे। सर मैम डॉक्टर सिर्फ मुस्कान डेंटल पल्स पल्स से छोटा नहीं है। ये टॉप आप टॉपर की बात एकेडमिकली अलग स्ट्रांग होती है, है। टॉपर है तो पल्स में क्या ही है, कितने ही है। गुड हाँ, गुड। मैम 60 आउट ऑफ 60 कितने क्वेश्चंस आपको लगता है कि डायरेक्ट पल्स से आए हैं? रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आए थे। एक जनरल आइडिया आप अगर दे सके तो डॉक्टर मुस्कान। आप दोनों लोग दे पाए तो हाँ, प्लीज। एक जनरल एक रफ आइडिया, रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम पल्स डायरेक्टली। सर रिपीटेड तो ऐसा क्या, लाइक मोस्टली उसी से ही थे, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से कि पल्स से ही आए हैं। ऐसा डायरेक्ट पिक नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट दे रखा है पल्स में। राइट राइट। मेरा खुद का मानना है कि पल्स में इतना सब कुछ दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं से वो लिंक हो जाता है, भले वो और डायरेक्ट मेरा नहीं। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है डॉक्टर श्वेता, आप तो इस टेस्ट सीरीज की शुरू से पार्ट रही हैं, मास्टर तो रहेंगे आपको बल्कि। टेस्ट सीरीज से कितना 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 लाइक क्वेश्चंस आपको फंसा था? लाइक ये मैं लाइव बच्चों को सुनाना चाहता हूँ क्योंकि 20 सिलेक्शन हमारे 25 में से कैंडिडेट्स आए हैं, तो कुछ तो बात थी। सर मतलब तो अगर आप उस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज को ले रहे हो, अगर उसमें क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको ब्रीफली पढ़ोगे ही, मतलब कि हाँ इसके बारे में और जान लेती हूँ, यहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो टॉपिक अगर टेस्ट सीरीज में इंक्लूड हो रहा है तो वो टॉपिक तो कवर करना ही करना है, तो वहां से क्वेश्चन आया ही आया है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप लोग इंक्लूड करते हो। तो और वो टाइम टेबल भी रहता है कि हाँ अपने को इस दिन में इतना कंप्लीट करना है, टाइम टेबल है तो मेरे को इतना में तो 90% चंक कंप्लीट कर सब्जेक्ट का इस दिन, अगर टेस्ट सर ने दिया है तो वो मिल जाता है, एक रूटीन मिल जाता है। एक एनवायरनमेंट टेस्ट का जो आप बैठेंगे 1 घंटे हाँ में किस तरीके से देना है, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है, कितना आपका पॉजिटिव कर पा रहे हो, 1 घंटे में आप टेस्ट होंगे, बिल्कुल एनवायरनमेंट टेस्ट का मान के ही आपको दें। और हम लोग टेस्ट भी उसी टाइमिंग्स पे कराएंगे जहां आपका वीएमसी का टेस्ट होगा। जैसे ही डेट्स का टाइम का पता चल जाएगा, हम टाइमिंग भी आपके टेस्ट के उसी पे शेड्यूल कर देंगे, तो आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होगी कि टाइमिंग्स आवर्स की, तो वो भी आपको हेल्प करेगी। आई थिंक डॉक्टर अंकित सर, डॉक्टर मोहित सर। वैसे आप लोग टेस्ट मतलब 48 आवर्स के बीच में कभी भी दे सकते हैं, बट वी टेल स्टूडेंट्स कि आप लोग उसी टाइम पे दीजिए। एग्जैक्टली Ma'am, how much do we need to focus on community dentistry? कम्युनिटी डेंटिस्ट्री से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। हमारे जो अभी एग्जाम हुए थे उस टाइम पे तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे इसमें। Okay, ma'am. Thank you. ओके, आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड। और किसी को कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क योर एडमिन्स एंड हम बैठे हैं जवाब देने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू डॉक्टर मुस्कान एंड डॉक्टर श्वेता फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। एंड प्लीज लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज दिस वेबिनार, डॉक्टर मुस्कान आपकी ओर से बच्चों के लिए क्या लास्ट है? फाइनल वर्ड्स। एक फाइनल वर्ड्स। यही कि अभी शायद 20 डेज बचे हैं, तो 20 डेज में ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते हो एग्जाम। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हाँ नो डाउट आप क्लियर कर सकते हो ये एग्जाम। डॉक्टर श्वेता आपकी तरफ श्वेता से जी। लोग नीट एमडीएस के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे तो ये 20 डेज में रिवीजन ही चलेगा तो हो जाएगा। और जैसे कि जैसे मैंने आपका टेस्ट सीरीज लिया था तो उसमें आपने कुछ लास्ट में पीडीएफ भी शेयर किया था, तो मेरे को याद है मैं एंड मोमेंट में वही पीडीएफ का ही क्वेश्चन देख रही थी कि हाँ मतलब अभी तो मैं बुक खोल के बैठ नहीं सकती हूँ, तो वही देखी थी, तो वो मेरे को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हुआ था। वही कि हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर श्वेता, थैंक यू। डॉक्टर अब हमारे जो होस्ट हैं जिनकी वजह से ये ऐप खड़ा है, तो डॉक्टर नित्यम आप फाइनल वर्ड्स क्या कहना चाहेंगे? कि आप अपनी अपनी नीट एमडीएस की प्रिपरेशन तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं और बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए, वरना फिर नीट एमडीएस तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ही, इसके बाद भी नहीं भी होता है तो ठीक है। बस यही मेरी तरफ से फाइनल वर्ड्स हैं। डॉक्टर अंकित आप फाइनल वर्ड्स, लाइक आप तो हमारे टेक्स्ट लाइन हैं, हमारे आपके लाइक सारे कंटेंट आप ही डालते हैं, Received तो सारे क्वालिटी आप ही मेजर करते हैं। 199 लंबी rupees लाइन आपको बोलनी on पड़ेगी, Paytm. बी पॉजिटिव से नहीं काम वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव, दैट्स इट। अपना टाइम यूटिलाइज Okay. करें जितना अच्छा हो सके। Okay, everybody, this was your host and host, Dr. Mohit, and we are closing this webinar now. Final words from your host also. Like, see, कई बच्चों ने पूछा कि 18 दिन बहुत कम है, तो 18 दिन आप कम मत देखिए, आप ये देखिए आपके पास 18 दिन है। इस पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने 7 दिनों में किया था, तो आप 18 दिन में कोई भी एक जेआरशिप का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और आप ये सोचिए कि 18 दिन बाकी बच्चों के लिए बात भी ये है, सबके लिए 18 दिन है, सबके लिए 18 दिन है। ये जो सवाल है ये हर बच्चा पूछ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, हम हैं और बाकी लोग आपको यहाँ पे हम ऐप के थ्रू आपको पूरी हेल्प करेंगे। बाकी आपको भी अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अ पर्सन विद क्लाउड माइंड एंड कॉन्फिडेंस इज अ डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड। These are the final comments from my side. Thank you all for joining this webinar. Thank you so much. Thank you.